on this subject, our very, very honorable and respected speaker, Ajay CA Amarjit Chopra ji is with us. I welcome you. And another speaker, CA Anil Sharma ji, a very, very learned person, is also with us. I welcome Sharma ji. I also welcome Sunil Damija ji, Anand Dua ji, Rajesh Jain ji, Rajiv Kohli ji, and all the attendee on behalf of Study Circle. As you know, there is no need to introduce our both the speaker, but it is still my duty for the recorded purpose. I am introducing him both the as a very, very briefly. First of all, our Chopra sir. Chopra ji qualified in 1975, was the chairman of NIRC in 1988-89, elected to Central Council of ICI for 5 terms, and then elected to Vice President of ICI for the year 2009-10 and President of ICI for the year 10-11. He was nominated by central government as Chairman National Advisory Committee on Accounting Standard, called as NACAS, for a period of 4 years, and Chairman of NACAS was responsible for implementation of Ind AS in India. He has been nominated by government as part-time member of National Financial Reporting Authority, that is the NAFRA. Also have been nominated on bench second of Disciplinary Committee of ICI for the period 2018 to 2022. He was on the board of IRDA, SAFA, CAPA. He was a member of PAODC, a committee of IFAC for the 3 years and its vice chair in the last year. He was nominated on the board of Bank of Baroda, Indian Bank, Garden Research Builders and Engineers Limited by Government of India, and was the chairman of audit committee in all the 3 organizations. Government of India had nominated him as a member to Investor Education and Protection Fund Authority. Presently, he is on the board of RICO Auto Industries Limited, Roop Automobiles Limited, Tata Power Delhi Distribution Limited, Accounting Research Foundation Limited. He has been a faculty in India and abroad, namely Pakistan, Sri Lanka, Bhutan, Myanmar, Bahrain, Abu Dhabi, Dubai, Muscat, Nepal, Indonesia, Mauritius, and also in more than 2,750 professional programs. He has been awarded honorary membership of Australian Institute of Chartered Accountants and life membership of Association of International Accountants, London. And he was impaneled as a faculty on the roster of IMF and have conducted IFRS training programs in Mauritius, Bhutan. This is the brief profile of our learned and very, very honorable, respected Chopra sir. I welcome you once again. सर उनकी पीएचडी आपने ऐड की कि नहीं? नहीं, पीएचडी ऐड नहीं की सर मैंने. अरे सर ये तो वेरी अनफेयर. सर सॉरी सर. अभी परसों ही उनको पीएचडी डिग्री फॉर्मली जयपुर यूनिवर्सिटी में मिल गई है. So I think that's a big achievement for him and for all of us. Congratulations, sir. Thank you, boss. Congratulations, sir. To introduce our another speaker, C.A. Anil Sharma ji. He is in practice since 1980. Vast experience of taxation and audit of large private sector companies, handling income tax appeal before CIT and ITAT, advisor on regulatory compliance under corporate laws in India, advisor on foreign investment in India and Indian investment abroad, a regular faculty at various institutes of repute for lecture on corporate law, foreign investment, accounting standard, corporate governance, a reviewer with peer review board and financial report review board of Institute of Chartered Accountants of India, and currently a member of NAFRA also. I welcome you once again. Thank you. And sir, before starting this, there is a one question came in my mind, that when the government issued this notification of PMLA, and after some time, government RBI came with a circular to withdraw the 2000 notes from the circulation. So please throw some light on both the this is, including this one. This one, once again, I welcome you, sir, and over to you, sir. Thank you, Rajesh ji. And of course, thanks to Rajesh ji, Anand ji, Rajiv ji, and Meja Sahab and all other participants. And of course, to my fellow faculty, Anil ji. अनिल जी, आजकल चार्टर्ड अकाउंटेंट कम और इकोनॉमिस्ट ज्यादा है. मेरे ख्याल में आप ये वर्ड बोलना शुरू करें हर सेमिनार में, वेबिनार में, क्योंकि आई थिंक द काइंड ऑफ एक्टिविटीज दैट ही इज इन्वॉल्व्ड इन टुडे एंड द वेरियस गवर्नमेंटल लेवल्स, इट्स एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग.
चाहे वो WTO का हो या कुछ और हो. I think his contribution to the nation, forget about the profession, is great. There's no doubt in my mind so far as that part is concerned. You are the inspiration, sir. So far as your question, Rajesh ji, is concerned, you see, on 3rd May, the government came up with the first circular on PMLA, which said that if you are a practicing CA or company secretary or cost accountant and you carry out any of the 5 activities on behalf of the client, ये बहुत जरूरी है जानना that the word is on behalf of the client. In that particular case, you become a reporting entity. ये ध्यान रखिएगा. ये नहीं कहा गया कि आपको हम कुछ कर देंगे या नहीं कर देंगे. ये कहा गया that you become a reporting entity. और 9th मई को एक और सर्कुलर आया जिसका सीएस के या कंपनी सेक्रेटरीज के साथ कोई लेना देना नहीं. उसमें एवरीवन इज कवर्ड, बट दे वेंट ऑन टू कवर द डायरेक्टर्स एंड ट्रस्टीज आल्सो. आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और उनका भी रोल ये है कि भाई अगर आपको कुछ पता है बेसिकली और आप स्टिल यू आर इन्वॉल्वड इन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, देन यू विल गेट इनटू द एम्बिट ऑफ PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. तो अनिल जी मेरे साथ हैं. बेसिकली जो आपने 2000 के नोट वाला क्वेश्चन पूछा, इस पे तो कुछ बोलना ठीक नहीं है आज की डेट में. सरकार ने किस कारण से किया, क्यों नहीं किया, इस इन एटलीस्ट इन सर्कुलर्स के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है, ये मैं आपको बता सकता हूँ. कोई और, चाहे वो इकोनॉमिक कंसिडरेशन हो, पॉलिटिकल हो, कुछ रही होंगी, बट एटलीस्ट विद दीज 2 सर्कुलर्स देयर इज नो कनेक्शन विद दैट. पर ये पक्की बात है कि ये सरकार का अपना मानना भी है कि out of the total circulation of money in the market, ये एक टोटल परसेंटेज जो 2000 के नोट है इनकी करीबन 11% ही है. पर शायद सरकार को ये लग रहा है कि 11% में से भी मेजॉरिटी हो सकता है कि 60% और 70% of these 2000 notes are hoarded and are not in the active circulation in the market. I think that is the consideration. And now, as I said, it can be a political consideration, it can be an economic consideration. And economic consideration बड़ी साफ है कि अगर ये 2000 के नोट निकल के आते हैं वापस, एक बात तो पक्की है, हम माने या नहीं माने, इट वाज इन दी ऑफिंग. 2019 के बाद बैंक्स ने, RBI ने ये करेंसी प्रिंट करना बंद कर दिया था. एंड आई वाज विद अ बैंकर यस्टरडे ओनली एंड ही सेड कि पिछले 2 साल से जो हमने ATMs हैं उनमें भी 2000 के नोट देने बंद कर दिए थे. बेसिकली वी वर वेरी क्लियरली इंस्ट्रक्टेड कि उसमें 2000 के नोट नहीं जाएंगे, जहां तक ATMs का भी सवाल है. तो गवर्नमेंट की इंटेंशन बैंकर्स को तो ऑलरेडी पता थी. लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट, बिकॉज ATM में उन्होंने वो खाका ही बंद कर दिया था जहां पे 2000 के नोट जाने हैं. तो it is an attempt to de-hoard basically, I can say, the 2000 rupees currency notes and bring it into the circulation of the economy. पर मुझे सिर्फ एक ही बात समझ नहीं आई, अगर इसकी इंटेंशन ये थी कि भाई आपने ब्लैक मनी को कंट्रोल करना है या मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करना है, तो कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक जिसमें SBI की मैं बात कर सकता हूँ, कैनरा बैंक की बात कर सकता हूँ, जहां पे सिवा आपके नाम के और कुछ नहीं पूछा जा रहा व्हेन यू गो टू एक्सचेंज द मनी. और एक आदमी कितनी बार लाइन में लगता है किसी को पता नहीं बेसिकली. पर अगर आपने बिना किसी आधार कार्ड के, बिना किसी पैन कार्ड के ये हो रहा है, तो फिर सर्कुलेशन में तो आ जाएगा पैसा, इसमें कोई शक नहीं है बेसिकली. बट एट द सेम टाइम whether it is going to control the menace of the black money, I have my serious doubts about it, very frankly, because then these 2000 notes will get converted into 500 currency notes. तो फिर क्या मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज से 4 साल बाद 500 का भी नोट बंद होगा? Am I going to expect that? I don't think that's going to happen in any case, because you can't go on actually disrespecting your own currency after every 4 years. तो मुझे ये बात बिल्कुल हजम नहीं है और मुझे ये समझ नहीं आई कि हाउ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स कैन एक्सेप्ट 2000 रुपीज करेंसी नोट्स विदाउट एनी आइडेंटिफिकेशन. बेसिकली ना आधार कार्ड ले रहे हैं, ना पैन कार्ड ले रहे हैं, सिर्फ आपका नाम पूछ रहे हैं. एंड दिस इज अ फैक्चुअल पोजीशन टू बी इन, एटलीस्ट
स्टेट बैंक का तो मैं बोल सकता हूँ और कैनरा बैंक का बोल सकता हूँ, दो का तो मैं आपको बोल सकता हूँ। जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं वो आपसे पूरी डिटेल ले रहे हैं, और एक दो इक्का दुक्का जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हैं वो भी आपसे वो पूरी डिटेल मांग रहे हैं जो पिछली बार उन्होंने मांगी थी जब डिमोनेटाइजेशन हुई थी। क्योंकि करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट तो रिजर्व बैंक को जानी है। In any case, it is supposed to go to the Reserve Bank of India. So if you are not taking that, और आपने सिर्फ लिख लिया रामलाल जी ने किया, रामलाल जी तो हिंदुस्तान में पता नहीं कितने होंगे, श्यामलाल जी कितने होंगे, राजेश जी कितने होंगे, अमरजीत कितने होंगे, nobody knows. So it cannot be considered to be a measure to control the black money. Let's be very clear about it. तो मेरे को इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि ये, हालांकि बिजनेसमैन के तो हित में होगा, वेरी फ्रेंकली, कुछ और लोगों के भी हित में होगा, कुछ पॉलिटिशियंस के हित में भी होगा, परंतु अगर मैं एज एन इंडियन समझूं, इसको एज ए नेशनलिस्ट समझूं, तो मैं नहीं समझता कि ये ठीक बात है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है वो आपसे कोई आइडेंटिटी नहीं मांगे किसी भी सूरत में। परंतु मैं फिर एक बात को रिपीट कर रहा हूं कि इस डिसीजन का पीएमएलए के नोटिफिकेशंस के साथ किसी तरीके का सरोकार नहीं है। अगर उसके साथ सरोकार होता तो आइडेंटिटी कार्ड आपसे जरूर मांगा जाता है, ये मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि फिर तो प्रिवेंशन करनी थी ना, यहाँ तो प्रिवेंशन हो नहीं रही अगर आप सही मानों में पूछो तो। दैट इज व्हाट आई विल लाइक टू स्टार्ट विद। और अब मैं अनिल जी के पास जाना यही चाहूंगा कि अनिल जी, ये हम सब लोग मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें, वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग के भाई ये सारे का सारा जो है प्रिवेंशन है मनी लॉन्ड्रिंग का। ये मनी लॉन्ड्रिंग है क्या, ब्ला क्या है बेसिकली? मतलब कि वैसे तो लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है धोना बेसिकली, जिसका स्वरूप बदल दो आप। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है क्या? थैंक यू सर फॉर सेटिंग द टोन। एज यू राइटली मेंशन, जो आज हम जो नोटिफिकेशंस दो हैं जिनके बारे में we are here to see discuss, these are notification relating to prevention of money laundering act 2002. प्राइमरीली अगर उस एक्ट के ऑब्जेक्टिव को आप देखें तो वो क्या कहता है कि दिस एक्ट इज टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टू प्रोवाइड फॉर कॉन्फिस्केशन ऑफ all the properties which is derived from or involved in money laundering. It's a very the scope of the law is very detailed, and in that process there are two terms are important which they have used. One is called proceeds of crime and the second is called scheduled offense. So अब इसको दोनों को जोड़ते हैं। Any proceeds of crime which means any property which is derived, obtained directly, indirectly, as a result of criminal activity relating to a scheduled offense. और scheduled offense को उन्होंने एक शेड्यूल जो एक्ट में है उसमें उन्होंने डिफाइन कर दिया। वो शेड्यूल में बेसिकली 3 पार्ट हैं अगर आप देखेंगे तो। उस 3 जो पार्ट ए है उसमें 29 एक्ट्स हैं जो उसमें कवर किए हैं, विच इंक्लूड्स आईपीसी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एंड मोर स्पेसिफिकली कंपनीज एक्ट ऑल्सो। जो पार्ट बी है, पार्ट बी एक सिंपल एक सेक्शन ऑफ द कस्टम एक्ट डील करता है, सेक्शन 132। वो सेक्शन क्या है जिसमें गलत डिक्लेरेशन वगैरह दी हैं और उसमें भी इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि वो तब इन्वोक होगा सेक्शन जब वो अमाउंट 50 लाख से ऊपर होगा। और शेड्यूल जो पार्ट 3 है, सी है ऑफ शेड्यूल, वो उसमें अभी उन्होंने लेटेस्ट एक्ट जो ब्लैक मनी एक्ट है वो, और क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन ऑफ पार्ट ए एंड पार्ट बी, ऑल एक्ट्स का जो क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन है। तो कहने का मतलब है कि जो PMLA है that deals with money which is the proceeds of crime emerging out of scheduled offense which is defined in the schedule to the act, ये है। और उसमें जब आगे चलते हैं तो वो उसको मनी लॉन्ड्रिंग को उन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया है, सेक्शन 3 में डिफाइन किया है व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग। तो उसमें कहा कि कंसीलमेंट, पोजेशन, एक्विजिशन,
और आइडिया ये है कि when a person project the tainted money as untainted money, whether in the shape of money or property, and claims that as a untainted property, then this process is called money laundering. तो अब ये जब ये प्रोसेस शुरू होती है, तो इस एक्ट ने, जब ये एक्ट बना तो इसमें एक प्रोसेस आई कि इसको पकड़ेंगे कैसे। तो उन्होंने कुछ आइडेंटिफाई किया कि ये जो प्रोसेस में कौन कौन नॉर्मली इन्वॉल्व हो सकता है। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया, बैंक इन्वॉल्व हो जाते हैं, शेयर ब्रोकर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, प्रॉपर्टी जहां रजिस्ट्रेशन होती हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि इन अथॉरिटीज को हम रिपोर्टिंग एंटिटी बना देते हैं, ये हमें बताएंगी और उसको देखकर हम उसमें से ढूंढ के निकालेंगे कि क्या ये कोई लिंक हो रहा है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का विद द शेड्यूल्ड ऑफेंस की नहीं। तो ये रिपोर्टिंग एंटिटीज का बीच में एक प्रोविजन आया, और इसके लिए जो ये एक्ट है, ये बेसिकली इसको जो इंप्लीमेंट करता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में DRI, डायरेक्टर रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जिसको और ED एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, और इसकी जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है वो है FIU, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो FATF के अंदर हर देश में बनी हुई है। सो इन तीन अथॉरिटीज में अब ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, FIU क्या है? FIU एक बेसिकली एजेंसी है जो रिपोर्टिंग एंटिटी से इंफॉर्मेशन लेती है, इंटरनेशनल जो उनके सारे टाई अप्स हैं वहां से इंफॉर्मेशन लेती है, प्लस सर्विलेंस, वो फोन्स को, मैसेजेस को, जितने भी वायरलेस हैं इनको टैप करती है उसमें से, एंड देन दे ट्राई टू, दे हैव ह्यूज, और बहुत अच्छे उनके पास सॉफ्टवेयर है, दे ट्राई टू गेट सम लिंकेज ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन फ्लोटिंग अराउंड, चाहे वो इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग एंटिटी से आए, उनको भी लिंक करते हैं, और देन based on that they send this information to different regulatory authorities. They may send it to CBI, they may send it to ED, they may send it to income tax office and so many other places, even GST. So different ताकि वो अपना एक्ट में नॉन कंप्लायंस उसको देख सके। तो ये है इस बैकग्राउंड में हम जो आज बात कर रहे हैं, हम जो ये नोटिफिकेशन आए हैं, these notifications are only with respect to reporting those entities. तो इसमें जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज SA, उसमें ये अमेंडमेंट आया। वो क्या है, उसका हेडिंग क्या है उस क्लॉज का? पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन। ये इसलिए डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को हमें पढ़ना पड़ेगा along with the definition which is section 2 clause 1 WA, वो है रिपोर्टिंग एंटिटी। रिपोर्टिंग एंटिटी में क्या लिखा हुआ है? रिपोर्टिंग एंटिटी मींस बैंकिंग कंपनी, तो बैंकिंग, सारी बैंकिंग कंपनी इन्वॉल्व हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग इंटरमीडियरीज, जिसमें इंटरमीडियरी को भी उन्होंने डिफाइन कर दिया, इंटरमीडियरी हैज आल्सो बीन डिफाइंड, और उसमें शेयर ब्रोकर्स, स्टॉक एक्सचेंजेस, इस तरह के, और जो जिस तरह का भी जहां पर भी ये ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कवर ऑलरेडी एक्ट में ही कवर्ड है। सो बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडियरीज, और इसके बाद एक रेजुडरी क्लॉज है, ए पर्सन कैरिंग ऑन ए डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन। ये जो है, ये डेफिनेशन आती है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज SA में। मतलब हमें रिपोर्टिंग एंटिटी में अब देखना है पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन। वहां पर अभी तक जो एक्ट में था उसमें वहां पर 6 क्लॉजेज हैं, 5 क्लॉजेज उन्होंने स्पेसिफाई किए हुए हैं, जिसमें है पर्सन कैरिंग ऑन एक्टिविटीज ऑफ प्लेइंग गेम्स, फिर रजिस्ट्रार, जो जहां पर सब ये डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन होती है, रियल एस्टेट एजेंट्स, डीलर्स इन प्रेशियस मेटल्स, प्रेशियस स्टोन्स, high value goods, and person engaged in safe keeping or administration of cash and liquid securities। जो प्राइवेट बहुत से वॉल्ट्स वगैरह बने हैं, ये इन सब को उन्होंने ऑलरेडी कवर किया हुआ था। और जो 6th क्लॉज थी वो रेजिडरी क्लॉज थी,
वो क्या कह रही है, पर्सन कैरिंग ऑन सच अदर एक्टिविटी एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन सो डेजिग्नेट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये इनफैक्ट ये क्लॉज इटसेल्फ जो रेजुडरी क्लॉज है ये 2013 में ऐड हुई थी। गवर्नमेंट को तब लगा था कि हो सकता है कि ये 5 तक हमें रिस्ट्रिक्ट ना करें, हमें रिपोर्टिंग और से भी लेनी पड़े, तो उन्होंने इसको फैसिलिटेट करने के लिए 2013 में एक्ट में अमेंडमेंट, इसमें क्लॉज 6 ऑलरेडी ले आए थे। अब इस क्लॉज 6 में ये जो हम नोटिफिकेशन आए हैं, ये हम आज 2 आए हैं नोटिफिकेशन, जिसने इस क्लॉज 6 के तहत एक नई चीजों को ऐड किया है। अब ये 2 नई चीजें क्या हैं? पहला जो नोटिफिकेशन है जिसको हम 2036 डेटेड 3 मई, इसमें जो वर्ड यूज हुए हैं, चोपड़ा साहब ने इनिशियली भी बोला था, मैं उसको अगेन स्ट्रेस करूंगा। उसने कहा कि द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कैरिड आउट बाय ए रेलेवेंट पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट इन द कोर्स ऑफ हिज प्रोफेशन इन रिलेशन टू स्पेसिफाइड एक्टिविटीज। ये पूरा का पूरा सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इसी पर ही पूरा अपना ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, it has to be a financial transaction, it has to be carried out by a relevant person। अब relevant person आगे define किया उसमें, जो आगे इसमें by way of explanation they have defined कि sorry not by explanation, by para B they have defined it। और फिर on behalf of his client, ये जो financial transaction है इस relevant person द्वारा जो अपने client के behalf पर हैं and in the कोर्स ऑफ हिज प्रोफेशन, इसको बहुत ध्यान रखना है। सो कहीं पर भी ये चेन नहीं टूटनी चाहिए। अगर इफ यू वांट टू रियली सी व्हाट आर दोस ट्रांजैक्शन, अब उन्होंने ट्रांजैक्शन भी स्पेसिफाई कर दिए। वो ट्रांजैक्शंस क्या है, मतलब उसको एक्टिविटीज कहा उन्होंने। एक्टिंग एज ए फॉर्मेशन एजेंट ऑफ कंपनीज एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एक्टिंग एज ए फॉर्मेशन एजेंट, ये वर्ड आप ध्यान रखिए, फॉर्मेशन एजेंट है यहां पर वर्ड। सेकंड इज एक्टिंग एज और अरेंजिंग फॉर अनदर पर्सन टू एक्ट एज ए डायरेक्टर और सेक्रेटरी ऑफ ए कंपनी, पार्टनर, फर्म और सिमिलर पोजीशन इन रिलेशन टू अदर कंपनी एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें यहां तो नहीं है इतना, पर जैसे आप सिंगापुर वगैरह में देखें, वहां पर जो जब कंपनी फॉर्मेशन होती है तो बहुत सी जो कंसल्टिंग फर्म्स हैं या जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म भी आ जाती हैं, दे अरेंज ऐसी नॉमिनी डायरेक्टर्स, दे अरेंज प्रोफेशनल सेक्रेटरीज, दे इवन सी प्रोवाइड स्पेस फॉर द कंपनीज टू सेट अप एट देयर प्लेसेस। तो तीसरा है प्रोवाइडिंग ए रजिस्टर्ड ऑफिस, बिजनेस एड्रेस और अकोमोडेशन, करस्पॉन्डेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एड्रेस फॉर ए कंपनी, एंड एक्टिंग एज ए ट्रस्टी of an express trust or performing as a equivalent function for another type of trust। और एंड में आखिरी है acting as a nominee shareholder for another person। तो ऑफ कोर्स नॉमिनी वाला तो हमारे को कंपनीज एक्ट में भी वहां पर जो बेनिफिशियल ओनरशिप वाला है उसमें वैसे भी वो डिक्लेरेशन जानी है, तो जहां जहां वो डिक्लेरेशन जाएगी तो इसका मतलब वो पर्सन यहां पर वैसे भी कवर होने वाला है। सो अब उसमें उसके बाद उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये जो हम ये रेलेवेंट पर्सन कह रहे हैं ये कौन है, उसको एक्सप्लेनेशन के थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन किया। उसमें कहा कि ये वो लोग हैं एन एक्टिविटी दैट इज, उसमें इन्होंने 4-5 लोगों को, ये अनिल जी आपने 9th मई वाला सर्कुलर जो है मुझे लग रहा ले लिया आपने, अब उसमें एक्सक्लूजन आ गई। नहीं ठीक है, मैं पहले एक्सप्लेनेशन 1 पे जाता हूँ। उसमें उन्होंने कहा कि रेलेवेंट पर्सन इंक्लूड्स, उस रेलेवेंट पर्सन इंक्लूड्स में उन्होंने कहा कि एन इंडिविजुअल हु ऑब्टेन्स ए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अंडर सेक्शन 6 ऑफ सीए एंड सिमिलरली फॉर कंपनी सेक्रेटरी एंड सिमिलरली फॉर कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट। सो ये लोग जो जिनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, ये ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ देयर प्रोफेशन अगर ये 5 एक्टिविटी करते हैं, देन दे बिकम रिपोर्टिंग एंटिटी। टू दैट एक्सटेंट दे बिकम रिपोर्टिंग एंटिटी।
for that particular matter. This is one. और उन्होंने उसमें कहा कि अगर आप फर्म में भी एज ए फर्म आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो देन दैट वुड आल्सो बी कवर्ड, क्योंकि उसमें कहा कि आइदर इंडिविजुअली और थ्रू ए फर्म. इस और इसमें अगर हम थोड़ा सा एक बार यहीं पर रुककर पहले इन 5 एक्टिविटी को एक बार देख लें. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, this is the first activity. Managing of clients' money is the and security and other assets. Management of banks, saving of securities is the third one. Organization of contribution for creation, operation and management of companies. Creation, operation of management of companies, LLPs, trust and buying and selling of business entities. तो अगर आप इन 5 एक्टिविटीज को देखें तो मोर और लेस पहली 3 तो मुझे नहीं लगता हम लोग एज ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर ये कभी हमने देखा होगा कि वी आर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ आवर क्लाइंट इन आवर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. पर 4th और 5th में आ जाता है. 4th एंड 5th में अगर देखें, दैट्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बिजनेस एंटिटीज. दिस इज वेरी कॉमन. M&A इतने हम लोग करते हैं. M&A transactions are being carried out to our firms. Then creation, operation and management of companies, LLPs and trust. तो अभी टेक्निकली ये भी पूरा कवर हो गया. Organization of contribution for creation, operation and management of companies. ये भी बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से कवर नहीं होता है. इसका मतलब ये है कि आप क्या करें कि आप एक कंपनी को बनवा रहे हैं, उसको चलाने के लिए आप कह रहे हैं ये शेयर होल्डर्स हम इकट्ठा कर रहे हैं. इस तरह से जो काम हम करते हैं. तो पहले 3 मुझे ऐसा लगता है कि अगर देखें तो हमारा कोड ऑफ एथिक्स आल्सो डजंट परमिट अस टू कैरी आउट दोस 3 एक्टिविटीज. इफ समवन डज दोस देन डेफिनेटली they would be covered, but more or less since we all follow code of ethics, so first 3 activities are not to be looked at in that fashion, but 4th and 5th are important. So those chartered accountants in practice, if we do these 4th and 5th activity in the normal course of our profession for and on behalf of our client, then we would be covered by this addition to person carrying on designated business or profession, and therefore will be covered as a reporting entity for the purpose of this PMLA. This is one. सर आपको यहाँ पर अभी कुछ ऐड करना है या शुड आई? नहीं, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा आपको यहाँ पे कि आपने बड़ा सही मानों में बोला कि भाई कुछ एक्टिविटीज तो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट ही परमिट नहीं करता. वेरी फ्रैंकली आई कैन नॉट एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रॉपर्टीज. राइट. But sometimes I get involved. I will be very honest in this. People do get involved in the buying and selling of the companies, basically. और वो buying and selling on behalf of the client ही होता. और वो आप वैसे ना भी कर रहे हो, परंतु आपकी मेल से आइडेंटिफाई हो जाएगा. ये मैं आपको पक्की बात बता रहा हूँ. So one will have to be very clear with regard to your mails also. कि कल अगर कभी कोई if you are leaving a track, basically trace, कि भाई actual में आप you are responsible for the purchase and sale of the companies on behalf of the client, then you are definitely getting into this particular trap. There is no doubt about it. पहली बात तो ये कि normally we should be away from it, but generally profession में जब आप होते हो, particularly मुफस्सिल towns में जो छोटे-छोटे शहर हैं, वहाँ पे you are unable to keep out of this. और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो इशू है, हम प्रैक्टिस के दौरान ना भी रहे, परंतु अगर हमने कंपनीज फॉर्म कर ली मैनेजमेंट कंसल्टिंग की, बेसिकली वहां पे ये काम हो रहा है. वहां पे इंस्टीट्यूट ने अभी क्लैरिफाई किया है कि भाई वो भी इट विल बी कंसिडर्ड टू बी कैरिड आउट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर प्रोफेशन. लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट. इवन इफ यू फॉर्म ए कंपनी and then start doing these activities in that particular company on behalf of certain clients, then also you will be covered by this particular act. So one will have to be extremely careful while carrying out these kind of activities, very frankly. और मैं ये बता सकता हूँ क्योंकि जब मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की बात की थी
तो मनी लॉन्ड्रिंग में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर ये भी है कि सिर्फ यही नहीं है कि आपकी मनी इलिसिट सोर्सेज से है, इलेजिटिमेट सोर्सेज से है, आप उसको कंसील करने की कोशिश कर रहे हैं. इवन इफ यू आर ट्राइंग टू ट्रांसफर दोज फंड्स टू सम अदर प्लेस जहां पे कि इसकी कन्वर्जन होती हो, बेसिकली इवन दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी मनी लॉन्ड्रिंग. कई लोग यहाँ से पैसा अगर भेजते हो जहाँ पे टैक्स हेवन्स है बेसिकली, और वहां पे भेज के किसी भी सोर्स से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, then you are covered by that. And I think I will not like to name any of the firms basically, but one will have to play it very very cautiously so far that part is also concerned. क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर है कि जहां पे भी पैसा इलेजिटिमेट है, क्रिमिनल एक्टिविटी से है, कोई ऑफेंस से है, और आप उसको या तो कंसील करने की कोशिश कर रहे हो या टेंटेड मनी को अनटेंटेड प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, या उसकी जगह चेंज करवा के उसको लॉन्डर करने की कोशिश कर रहे हो, then you are being hit by those provisions. Let's be very clear so far as that particular part is concerned. So one will have to act in a very very cautious way. नहीं सर, दूसरा ये मैं एक क्वेश्चन जो अनिल जी से रेज करना चाह रहा हूं, क्योंकि पीएमएलए की बात आज आई है जहां तक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का सवाल है, एंड वी हैव बिकम रिपोर्टिंग एंटिटीज राइट नाउ. परंतु नॉक्लियर का प्रोविजन अंडर इथिकल कंडक्ट is already there basically, particularly in respect of the public interest entities, non-compliance with the other laws and regulations. और वो एथिकल कोड में बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपको ये लगता है कि कंपनी वाले कहीं पे कोई ब्राइबिंग कर रहे हैं या कोई करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है या किसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, या जैसे ये जितने रियल एस्टेट बिजनेसेस के कई हादसे हुए हैं बेसिकली, वो सब के सब आपको नोक्लर के अंदर रिपोर्ट करने थे बेसिकली. हालांकि जो नोक्लर फॉलो हुआ इंडिया में कंपेयर टू इस्बा, वो बड़ा एक डाइल्यूटेड सा वर्जन आया है इफ यू आस्क मी. परंतु नोक्लर में ऑलरेडी था, पीएमएलए तो अब आया. सो यू वर ऑलरेडी ए सॉर्ट ऑफ ए रिपोर्टिंग एंटिटी अंडर इस्बा. इस्बा को हमने डाइल्यूट कर दिया, वो बात अलग है, पर इस्बा की इंटेंशन पहले भी यही थी कि इथिकल कंडक्ट में आप इनको कंसर्न्ड अथॉरिटीज को रिपोर्ट करेंगे जहां जहां पे ऐसी वायलेशंस होती हैं. जबकि हमने शायद ये कह के छोड़ दिया था कि आप इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट कर दीजिए, वेरी फ्रैंकली. तो मेरा अपना मानना ये है कि कुछ चीजें हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में हैं जो हम कर ही नहीं सकते, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट. और कुछ हमारा कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि आपको करनी पड़ेंगी, और अगर आप नहीं करेंगे देन यू विल बी हेल्ड गिल्टी. पीएमएलए इज ओवर एंड अबव ऑल दैट, वेरी फ्रैंकली. और अब पीएमएलए में जो आपकी रिपोर्टिंग एंटिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, उसमें क्या रिकॉर्ड आप मेंटेन करेंगे, वो इंस्टीट्यूट वाले एफआईयू के साथ कंसल्ट करके करेंगे. जो रिकॉर्ड आप मेंटेन करेंगे वो 5 साल के लिए आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, और 5 years from the date of the transaction or from the end of the relationship with the client, whichever is later. वो हमेशा लेटर वाला लेटर होगा, क्योंकि जिस दिन आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंटर की उस दिन तो आप उसके साथ रिलेशनशिप में थे ही. आपकी रिलेशनशिप उससे हमेशा साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जाके खत्म होगी. तो उस डेट के बाद आपने 5 साल और मेंटेन करना. तो आई थिंक द लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर्टिकुलरली, वेरी फ्रैंकली. पर इसमें एक ही वर्ड जो मैं अनिल जी के पास बाद में जाऊंगा थोड़ी देर के बाद, अभी मैं अनिल जी को कहूंगा कि जो 9th का सर्कुलर है, 9th में का, वो डायरेक्टर्स की बात करता है, वो ट्रस्टीज की बात करता है, उसकी मैं बात बाद में करता हूँ. परंतु अनिल जी से ये पूछना चाहूंगा क्योंकि अनिल जी हैज बीन वेरी मच इन्वॉल्व्ड इनटू सर्टेन नॉट दीज एक्टिविटीज बट ऑन सर्टेन रिकमेंडेशंस टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग. अनिल जी, मुझे बड़ी हैरानगी होती है किसी वक्त हम ये कहते हैं कि हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है बेसिकली, जिसको आप FATF बोलते हैं, उसकी रिकमेंडेशंस हमने कंप्लाई करनी है. और मेरे हिसाब से 2 ही कारण हो सकते हैं जिस कारण से ये पीएमएलए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे या कॉस्ट अकाउंटेंट्स पे या कंपनी सेक्रेटरीज पे लागू किया गया. एक कारण तो यह कि यू वांट टू बी FATF कंप्लायंट, द नेशन वांट्स टू बी FATF कंप्लायंट, क्योंकि FATF की रिकमेंडेशन में बड़ा क्लियरली लिखा है लॉयर्स, अकाउंटेंट्स
एंड नोटरीज आल्सो, बेसिकली वहां पे नोटरीज का वर्ड भी है। अगर हमने कंप्लाइंट ही होना और हमारे रिव्यू ड्यू है मंथ ऑफ नवंबर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन कंट्री का, और अगर कंट्री के रिव्यू में डेफिशिएंसीज आती हैं, then probably it will be considered to be a gray area, and international funding can have a very serious impact on the international funding to the government. अगर हमने compliant ही होना तो हम fully compliant क्यों नहीं, lawyers क्यों नहीं cover किया, notaries को क्यों cover नहीं किया, और accountants का जहां तक word है वहां पे कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ in practice, वहां पे लिखा हुआ accounting, basically accountants, और अगर अकाउंटेंट्स कवर्ड थे तो फिर तो बुक कीपर्स भी कवर्ड होने चाहिए बेसिकली, देन एवरीवन इज कवर्ड। जबकि यहाँ पे जो वर्डिंग है, जो हमारे पीएमएलए में वर्डिंग की गई, विच इज अ डाइल्यूटेड वर्जन ऑफ एफएटीएफ रिकमेंडेशंस बेसिकली, जो ये कहता है कि भाई आप प्रैक्टिस कर रहे हो तभी सिर्फ ये लागू है, जबकि वो कहता है अकाउंटेंट्स भी, वो लॉयर्स को भी कहता, वो नोटरीज को भी कहता। अब नोटरीज और लॉयर्स कहीं पे इंक्लूडेड नहीं है, और अकाउंटेंट्स को तो आपने सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पकड़ लिए, कॉस्ट अकाउंटेंट पकड़ लिए, परंतु वो सिर्फ प्रैक्टिस वाले पकड़े। जो किताबें बनाते हैं, जिनसे सारा कुछ ओरिजिनेट होता है, जिनके पास सारी इंफॉर्मेशन है, उनको आपने छोड़ दिया। वाई? ये मुझे बात समझ नहीं आ रही। मैं समझाता हूं सर। सर देखिए, आप ना प्लीज डोंट मिक्स द टू टॉपिक्स। आपने पीएमएलए को रिपोर्टिंग एंटिटी वाले प्रोविजन से ऐड कर दिया, सो लेट अस रिस्ट्रिक्ट अवरसेल्फ टू रिपोर्टिंग एंटिटी फॉर द टाइम। अभी हम बात कर रहे हैं कि हु आर दोज हु आर कवर्ड, हु हैव बीन नाउ डेजिग्नेटेड एज रिपोर्टिंग एंटिटी। अभी इस पर रिस्ट्रिक्ट करते हैं, फिर आगे क्या काम कर रहे हैं वो तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दोज हु आर इन्वॉल्व, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, इट्स लाइक ए, इसी वो कहते हैं ना छुआछूत वाली है, जिसको लग गई सब इसमें आ गए, एवरीबडी विल गेट इन्वॉल्व एंड देन दे विल बी पेनलाइज्ड अंडर दिस पीएमएलए। आई एम नॉट ऑन टू दैट, वी आर वेरी एट द मोमेंट, लेट्स रिस्ट्रिक्ट अवरसेल्फ what is new has happened with regard to chartered accountant, and that is that chartered accountants, if carry out certain specific activities in the normal course of their business for their, on behalf of their client, then they will be considered as reporting entity, and then accordingly they have to comply with certain provisions. तो उसको एक मिनट पहले पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। So अभी नाउ फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ लेट्स कम टू द 9th मई, जो 9th मई को नोटिफिकेशन आया। इसी 9th मई का नोटिफिकेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें एप्लीकेबल नहीं है। दैट इज, इफ यू लुक एट द वर्ड्स आर द फॉलोइंग एक्टिविटीज व्हेन कैरिड आउट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन एज द केस मे बी। तो इट मींस जो कैरीड आउट प्रोफेशन वाला था वो पहला था, थर्ड का, ये बिजनेस का है तो ये हमें अप्लाई नहीं करता, पर जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो दोनों के लिए अप्लाई करता है। इफ यू जस्ट आफ्टर incorporating these two changes, when you look at the entire definition, then you apply this explanation। उस explanation में क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज क्लैरिफाइड दैट द फॉलोइंग एक्टिविटीज शैल नॉट बी रिगार्डेड एज एक्टिविटी फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लॉज 6 ऑफ क्लॉज एसए ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट। तो जो मैंने आपको बताया था कि ये रेजुडरी क्लॉज के लिए, रेजुडरी क्लॉज में जो 4 एक्टिविटी इन्होंने आगे एक्सप्लेन की हैं, ये अगर कोई करता है तो उसकी वजह से वो रिपोर्टिंग एंटिटी नहीं बनेगा। अब वो क्या है, उसमें जो हमारे लिए रेलेवेंट है, मैं वो बात कर, एनी एक्टिविटी दैट इज कैरीड आउट बाय एन एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, हु इज एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ फाइलिंग ए डिक्लेरेशन एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अगर आप वहां पर जाएं, वहां पर जो अपने एक्टिविटी था क्रिएशन, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, उसमें से जो क्रिएशन वाला पार्ट है उसको उन्होंने यहां कर दिया कि अगर आपका इस क्रिएशन में इन्वॉल्वमेंट इतना ही है कि आप यू आर जस्ट साइनिंग द डिक्लेरेशन व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड अंडर सेक्शन 7, देन यू आर नॉट कवर्ड।
ये उन्होंने यहाँ पर इसको रिलैक्स किया और उन्होंने कहा कि एनी एक्टिविटी दैट इज कैरिड आउट बाय द एम्प्लॉय ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, तो वो भी, क्योंकि एम्प्लॉय को भी वो रिपोर्टिंग एंटिटी नहीं बना सकते, दे आर, जो सर आप बार बार कह रहे हैं, वो दे आर कवर्ड, they once if they are involved with their employer in see any activity which are covered, which are scheduled offense, they would be covered, but they will never become a reporting entity. We are only here talking about who is now required to report. So क्योंकि ये सारा का सारा सेक्शन, मैंने बार बार आपको कहा कि इस सेक्शन को हमें वापस जाकर पढ़ना है, जो रिपोर्टिंग एंटिटी की डेफिनेशन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 WA, क्लॉज WA. रिपोर्टिंग एंटिटी मींस ए बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडियरी और ए पर्सन कैरिंग ऑन ए डेजिग्नेटेड बिजनेस ऑफ प्रोफेशन. तो इस दो सर्कुलर से, नोटिफिकेशन से पर्सन कैरिंग ऑन ए डेजिग्नेटेड बिजनेस ऑफ प्रोफेशन डिफाइन हुआ है, ओनली टू दैट एक्सटेंट. अब इसका इंपैक्ट क्या है? नाउ लेट अस गो फर्दर. इसका इंपैक्ट है, अब आपको देखना है कि जो पूरा पीएमएलए है, ये रिपोर्टिंग एंटिटी को कौन कौन सा सेक्शन अप्लाई करता है. अब आप उसमें जब जाएंगे तो सेक्शन 11A, एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी विल कैरी आउट द वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी. वो जो हमारा KYC वाला है, वो सेक्शन 11A है पीएमएलए का, वो रिपोर्टिंग एंटिटी को लगेगा. 12, मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ transactions as well as identities which they have verified. फिर 12A, submission of information to director which is FIU. Then 12AA, enhanced due diligence. जब वो उसमें उन्होंने स्पेसिफाई किया कि ऐसे ट्रांजैक्शन अगर नजर आएंगे जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, उस केस में एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस होगा. और फिर एक सेक्शन 15 है which is basically the section which gives powers to the government to prescribe rules. और उस सेक्शन के तहत पीएमएलए में रूल्स बने, जिसको हम बोलते हैं पीएमएलए मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड रूल्स 2005. तो 11A, 12, 12A, 12AA are 4 rules which are applicable to reporting entity. उसमें उसको वेरिफिकेशन करना है, उसको रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, उसको FIU में इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है, और उसको एनहांस ड्यू डिलिजेंस करनी है इन द केस ऑफ ए सस्पिशियस ट्रांजैक्शन. ये 4 सेक्शन का जिस्ट है, इसको आप डिटेल में पढ़ लेंगे. अब हम आते हैं रूल्स में. अब जब हम रूल्स में आते हैं तो उसमें बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो हमको एप्लीकेबल होंगे. रूल 3, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन. तो उसमें उसने कहा क्या नेचर और कितनी वैल्यू का ट्रांजैक्शन है जिसके आपको रिकॉर्ड रखने हैं. नाउ वी आर प्रिज्यूमिंग दैट वी आर नाउ ए रिपोर्टिंग एंटिटी टू सर्टेन एक्सटेंट व्हिच हैज बीन डिफाइंड थ्रू दीज नोटिफिकेशंस. ये होने के बाद हमें 11A, 12, 12A, 12AA लग गया. इस वजह से हमें ये रूल्स फॉलो करने हैं. इस रूल फॉलो करने के लिए हमें अपना रूल 3 में मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजैक्शन, तो सबसे पहले तो हमें जो उनकी वेबसाइट है FIU की, उस वेबसाइट में जाकर हमें अपना रजिस्ट्रेशन करना है. सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट. उसकी वेबसाइट का यू नो दैट finnet.gov.in, वहां जाकर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे. और रूल 3 में मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन, इसमें रूल 3 बहुत डिटेल्ड है और इनफैक्ट यही है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है. इसमें नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस. और इसमें अगर क्विकली बात करें तो फिर रूल 4 में रिकॉर्ड्स की इंफॉर्मेशन क्या क्या होगी, जो रिकॉर्ड रखना है उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन जाएगी. और रूल 5 इज इंपॉर्टेंट, जो इंफॉर्मेशन हमें डायरेक्टर को FIU को देनी है. देयर दे हैव मेड 3 पार्ट्स ऑफ इट. उसने कहा कि जो रूल 3 है उसमें 1, 3, 1
A, B, BA, C एंड E। यहां पर जो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं क्या क्या है। 3(1)A है कैश ट्रांजैक्शंस मोर देन ₹10 lakhs, कैश ट्रांजैक्शन। B, सीरीज ऑफ कैश ट्रांजैक्शन वेयर मंथली एग्रीगेट मोर देन 10 lakhs, ये हो गया B। BA है all transactions of NPOs exceeding ₹10 lakhs. C, all cash transactions where forged currencies has been used, or then E is all cross-border wire transfers of more than ₹5 lakhs. ये वो ट्रांजैक्शन है जिसकी इंफॉर्मेशन रूल 5 के तहत मंथली बेसिस पर FIU को जाएगी। फिर है रूल 3(1)D जिसमें विद इन 7 days जानी है। ये क्या है? ऑल सस्पिशियस ट्रांजैक्शन वेदर इन कैश और अदरवाइज। तो अब ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन क्या है, इसके लिए वापस हमें रूल में जाना पड़ेगा, रूल 2 सब रूल 1 क्लॉज G। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को उन्होंने वहां डिफाइन किया है कि व्हाट इज सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। और इनफैक्ट सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के बाद जो ट्रांजैक्शन वर्ड है वो भी डिफाइन किया हुआ है रूल 2(1)H। तो जब हम इन दोनों रूल को साथ में पढ़ेंगे तो उसमें वो कह रहा है कि पहले ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट, डिपॉजिट, विड्रॉल, यूज ऑफ सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स, एंटरिंग इनटू fiduciary relationship, any payment made or received in whole as a legal or other legal obligation, any payment made in respect of playing games, creation and creation of legal person or legal arrangement, ये तो हो गए ट्रांजैक्शन। सस्पिशियस कब होगा ये ट्रांजैक्शन? When it gives rise to a reasonable ground of suspicion that it may be involved proceeds of an offense specified in schedule to the act। ये यहां पर आके जो चोपड़ा साहब इनिशियली बात कर रहे थे, यहां पर हम आकर हमें PMLA के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपको कोई ऐसा ट्रांजैक्शन नजर आता है, अगेन वापस जाएंगे, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस while you are providing on behalf of your client in those specific transaction, if you feel that there is some transaction where the proceeds of offense might be involved, मतलब इसको अगर हम ऐसे पढ़े, अगर आपको लगता है कि एक आदमी ने लेट्स से रिश्वत का पैसा लिया और उस वो रिश्वत के पैसे को एक बाइंग और सेलिंग ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व कर रहा है, जहां पर आप उसको हेल्प कर रहे हैं इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, आप उसमें इन्वॉल्व हैं, तो ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, क्योंकि आप रिपोर्टिंग एंटिटी हैं, आपको रूल 5 के अंदर एज ए सस्पिशियस ट्रांजैक्शन 7 दिन के अंदर FIU को रिपोर्ट करना है। और इसके अलावा जो आखिरी वाला है, जो क्वार्टरली रिपोर्टिंग है, ऑल परचेज एंड सेल बाय एनी पर्सन ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी, ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि ये इन्होंने रिपोर्टिंग एंटिटीज जो रजिस्ट्रार जहां पर रजिस्ट्रियां होती हैं वो उनको एप्लीकेबल है। तो हमारे लिए मंथली और ये 7 दिन वाला, ये 2 प्रोविजन हमारी रिपोर्टिंग हमारे को इन्वॉल्व होगी। रूल 9 अबाउट द ड्यू डिलिजेंस, इसमें एट द कमेंसमेंट जब हम अपना अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप उसके साथ करेंगे, उस वक्त क्या हमें ड्यू डिलिजेंस में क्या क्या डॉक्यूमेंट रखने हैं, ये रूल 9 में प्रोवाइड किया हुआ है। और जब हम कोई ये देखेंगे कि डिटरमिन करेंगे कि इसका बेनिफिशियल ओनर कौन है, ट्रांजैक्शन तो हम इससे कर रहे हैं, ए से कर रहे हैं, पर एक्चुअली इसका बेनिफिशियल ओनर कौन है वो भी हमें डिटरमिन करना है अपने ड्यू डिलिजेंस में। तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे, और फिर उसके बाद जो इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, ट्रस्ट, उनकी जब हम ड्यू डिलिजेंस नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में करेंगे तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट अपने पास रखना है, और उन डॉक्यूमेंट को जो सेंट्रल KYC रजिस्ट्री है उसमें जो फाइल करने हैं डॉक्यूमेंट,
जो इंफॉर्मेशन फाइल करनी है बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन विच यू हैव गैदर्ड अंडर रूल 9, तो ये डॉक्यूमेंट अपने पास रखने हैं और ये इंफॉर्मेशन सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री में जो FIU में है उसमें हमको फाइल करनी है। तो इस तरह से अगर हम इसको देखेंगे, ये इतनी रिक्वायरमेंट हमारे को एज ए रिपोर्टिंग एंटिटी आती है। तो मेरे हिसाब से इस नोटिफिकेशन का जो इम्पैक्ट है, पहले तो हमें ये डिटरमिन करना है कि इज इट एप्लीकेबल टू अस, आर वी कैरिंग आउट दीज एक्टिविटीज in the normal course of our profession for and on behalf of our customer. Then we treat ourselves as we have to treat ourselves as a reporting entity. Then get yourself as a registered as a reporting entity, and after that comply with section 11A, 12, 12A, 12AA and this PMLA maintenance of rules 2005 by filing various returns as well as filing KYC information with the central registry. तो मुझे लगता है कि ये प्रोविजन का स्कोप है। अब इसमें हम इसको Anil ji, the point is, again I am going back. You may say that I am confusing the two sections. नहीं sir, I am not saying. No. At the moment, just 1 minute. Mixing the two. Just 1 minute. मेरा सारा कंसर्न ये है कि अगर सरकार वाकई में कंप्लायंट होना चाहती है FATF के साथ, रिकमेंडेशंस के साथ, तो भाई हमें रिपोर्टिंग अथॉरिटी बनाया, एंटिटी बनाया, लॉयर्स को, नोटरीज को भी बना देते। वेयर इज द प्रॉब्लम? हम भी वैसे तो कवर्ड ही है ना। अगर हम कोई PMLA की एक्टिविटी करते हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी करते हैं, एज इंडिविजुअल CA, एज ए फर्म ऑफ CA, आई एम इवन अदरवाइज रिस्पॉन्सिबल, जैसे कि लॉयर्स आर इन्वॉल्व। तो why this discrimination? That is one part. Or to khair, in any case, this question has no relevance because I think we have always been discriminated somewhere or the other, whether it was the case of service tax or it is the case of VAT or it is the case of GST. हमारे देश में मजेदारी ये है कि एक बेचारा जो छोटा सा किराने वाला है, उसको तो GST की कंप्लायंस करनी है, परंतु जो हाईएस्ट पेड प्रोफेशन है, ये हमारी मतलब की पूरी सरकार की सोच है, चाहे वो पहली सरकार थी या आज की सोच है, कि जो हाईएस्ट पेड प्रोफेशन है उसको नहीं करनी है, क्योंकि वो बेचारे के पास काबिलियत नहीं है करने की, उसको पूरा करने की। यहाँ तो ये सोचा जाता। सर एक मिनट सर, एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दीजिए। इसलिए जब आप बोल रहे हो तो मैं बीच में कहीं नहीं बोलता हूँ। थैंक यू सर। बिकॉज़ आई पर्सनली फील दैट यू शुड से योर पार्ट। और दूसरी बात, आफ्टर ऑल यू सी, आप बिजनेस जब आप प्रोफेशन करेंगे, कोई ना कोई एक्टिविटी आपके साथ आके चिपकेगी। डेफिनेटली समथिंग और द अदर विल हैपन व्हेन यू आर कैरिंग ऑन अ प्रोफेशन। यू विल डेफिनेटली बी इन्वॉल्वड इन लोन सिंडिकेशन। Loan syndication is fairly and squarely covered to my mind in the fourth activity, whatever we may say. So because you are arranging money for the operation of the company. Now, in that particular case, you look at my role. My role is going to be that I will have to do the KYC of the client. Fine, I will do the KYC. I will have to look at the source of the funds. First source of the fund or source of the funds. I think that needs a clarification from the government. Then it says that you need to get into the beneficial owner also. In a country where SEBI is unable to verify the beneficial owners of a particular group, you are expecting a chartered accountant to verify the beneficial owners of a particular company. I think it's too much. It's asking too much from a particular professional with no powers, basically. Either you give us the legal powers to do it. There is no legal power. It is only a sort of a due diligence that I will be doing in the case of a particular client. And then I will ask him what is the beneficial owner. So the impact of this, what is going to be the impact of this? I become a reporting entity. Certain professions are not reporting entities. So the person who is trying to deal with a reporting entity, he will say, yeah, I will go to someone who is not a non-reporting entity. And particularly in Mufassil towns, this work will flow from us to some other professionals. I'm very clear about it. Because the moment I will tell the client that I will be under an obligation to report it, and the other part is suspicious. Being suspicious is a very, very subjective word, very frankly. Of course,
I know the banks report day in and day out the suspicious transactions, and FIU is hardly able to pick up even 1% of those transactions as suspicious transactions. But today, all the income tax rates, etc., are not based upon the complaints. These are all being based upon the FIU information which is being provided to them. Mera concern, my real concern is, number one, the onerous obligation that I will be under to maintain all those records. We all know the kind of fee that we get from the clients and with how much difficulty we get the fee. And then the cost of the compliance of all this reporting. And then that risk also of losing the client also at the same time to a non-reporting entity. All this is going to be faced by the chartered accountants. I think the company secretaries and the cost accountants have not been able even to fathom the idea कि इसके अंदर है क्या. I think that's the problem. They are not even able to appreciate what are going to be the problems in this case. The other thing that I would like to say, so far as the 9th May circular is concerned, they talk of the business to begin with. But when they come to the exclusions are for the profession. The exclusions are not for the business. I think this is such a badly drafted circular, which can defy the very logic. You are talking about the business, and then you give the exclusions to the professionals, basically. And there also, we have got the exclusion for the creation because they wanted to give that exemption to the advocates. Let's be very clear about it. You wouldn't have got this exemption, but because the advocates are also empowered to do that certification, so they thought that if that exemption is not provided or exclusion is not provided, they will be covered there. So that exclusion has been given to chartered accountants, company secretaries, and others only to provide exclusion to the advocates for that reason. And the other thing that one will like to, and that is something that I will like to discuss here in detail. You are trying to cover the directors. You are trying to cover the trustees. Now you take the case of a company, whole-time director hai. If it's a case of a whole-time director, you know what is happening in the company. If you are an independent director, how do you come to know? You go and attend only a meeting after 3 months, basically. And if you are a trustee, you look at some of the trusts, even which are running the hospitals in Delhi, the total number of trustees could be 1,000, basically. People pay money to become the trustees because it's considered to be a sort of a status symbol. But the trustees who manage these hospitals or trusts are hardly 10 or 20 or 30 maybe. Now, whom you are going to make responsible? Whole-time directors or all the directors? Managing trustees or all the trustees? Basically, I think we are making the law very, very complex. We are making the law too difficult. As I said somewhere else also, pendulum has swung from a level of under-regulation to over-regulation. But no law should instill the fear in the minds of the people to the extent that it brings down the level of economic activity in the country. आपको ये बता सकता हूँ, अगर ये डायरेक्टर्स वाला चला तो कॉम्पिटेंट लोग तो डायरेक्टरशिप लेंगे ही नहीं. Why should they take? PMLA का पंगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर काय को बनूंगा मैं किसी भी कंपनी में कि अगर मुझे PMLA की भी ऑब्लिगेशन लेनी है. तो आई थिंक समवेयर और द अदर the government should come out with a clarification. अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल बनाना भी है तो किस टाइप की ट्रांजैक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाना है. बेसिकली पहली बात तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को इस बात से छूट होनी चाहिए, पर अगर आप बनाना भी चाहते हो तो किन बातों पे, और जो नॉन मैनेजिंग ट्रस्टीज हैं उनको आप किस तरीके की एग्जम्पशन देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, और उनको क्यों, उनकी लाइफ क्यों डिफिकल्ट कर रहे हो यार. जो बंदा स्टेटस सिंबल के लिए बेचारा ट्रस्टी बन रहा, 1000 1500 ट्रस्टीज हैं किन्हीं ट्रस्ट में ऑल ओवर लेवल, ऑल इंडिया लेवल पे, और उनमें से 30 लोग सिर्फ उसकी ट्रस्ट को मैनेज नहीं करते हैं. मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं सरकार को इन बातों पे सोचना पड़ेगा. फिर दूसरी बात, जहां तक उसका सवाल है कि भाई आपने ऑर्गेनाइज किया किसी डायरेक्टर के लिए, किसी नॉमिनी शेयर होल्डर के लिए, अगर आपने वही ड्राइवर्स अरेंज करके देने हैं, पीएम्स अरेंज करके देने हैं, मेड्स अरेंज करके देने हैं डायरेक्टर, तो फिर जो लायबिलिटी आएगी जिसके सर पे भी आएगी, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एडवोकेट हो, कोई और हो, बिजनेसमैन हो,
I have no objection to that basically. Very frankly, if I am trying to carry out the activity, कि जितने भी ये रियल एस्टेट वाले हैं, इनकी अगर आप सब्सिडीज में चले जाओ या जॉइंट वेंचर्स में चले जाओ, द काइंड ऑफ डायरेक्टर्स दैट दे हैव, या तो उनमें पीएन मिलेंगे, या उनमें ड्राइवर्स मिलेंगे, या उनमें मेड्स मिलेंगे. अगर उस तरीके के डायरेक्टर्स हैं तो ठीक है, फिर अगर कोई एक्टिविटी कर रहा है उस तरीके की तो लेट इट बी. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जहां पे जेन्युइन केसेस, डायरेक्टर्स क्यों हो, ट्रस्टीज क्यों हो, किसी और क्यों हो, कम से कम वहां पे सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि whether we are trying to increase the economic level of economic activity, or we are trying to instill the fear कि level of economic activity or competent people basically shy away from some of the good jobs basically. So that's my only question. Sir, in fact, I was discussing with one official from PMLA. So about this advocates. So he was pointing out that if you look at explanation 1 of 3rd May 2023 notification, it only says includes. So he's saying includes is not means. So don't worry, advocates will also be covered. Though we have not specifically mentioned, the word includes only specifying that they are definitely covered, but this is one point. And second point, I fully agree with you that 9th May notification is a very, very well ill-drafted notification, because if you see bring director also as a reporting entity, say look at what kind of number of reporting entity will emerge all of a sudden. All directors, all secretaries, all partners, all persons, even trustees, it's going to be a huge number. And then because the filing requirements say even nil return has to be filed. So that is, I think, very ill drafted. But one point which you mentioned about the why 9th May is talking about business and giving exemption to profession. You see, that is the reason that I could explain you quickly, that when this 9th May notification has to be read after section has been amended by 3rd May notification. And when you read that in continuity of that, then this exemption makes sense. I mean, it is not out of this thing, because the earlier part has already been included. Here they are talking about the entire clause 6, subclause 6 of clause SA. So therefore, that part I personally feel is not that useless, I would say. But definitely useless bola hi nahi. I never said it's useless. I never said, sir, it's useless. I said that exemption has come to us because they wanted to exempt the advocate. It's not like that. ये exemption उन्होंने अब section में आप अगर उसको realign करके देखेंगे ना, जब when news, then this will make sense. Yeah. And that's this inclusive word is very important. This has been told to me by a very senior officer in PML. No, I will definitely like to be enlightened after 6 months or a year in how many cases the lawyers have actually reported or lawyers have registered with the FIU. I think let's have some figures from the government. Absolutely. How many advocates have actually registered themselves as a reporting entity? And I can tell you the answer will be nil. And one question which I have to you, sir, is applicability. From which date this would be applicable? And see, that is one. I mean, there can be a normal answer that it is applicable from the date of notification. But suppose one contract has already started, which is, let's say, going to conclude after 3rd May or 9th May. Do I have to report, suppose I become a reporting entity, do I have to report for that work in progress also, or it is only for the new assignments
which I am going to take up after the date of these notifications. Can you? My hunch, Anil ji, is so far, even the format has not been given out by the FIU as per the institute. Whatever talk I had in the institute will have to consult the FIU, and in that case, they will have to come out with some kind of a format as what formats the chartered accountants will be maintaining the information in. Probably it should be from that the date of those rules being notified with regard to the information to be given. Because if I'm the reporting entity, unless I have got the format for reporting, I don't think it can be implemented in those cases. That's the way I look at it. And probably this answer has to come from the institute as soon as possible. And I personally feel institute must try to negotiate or try to engage in discussion with the FIU on the various clarifications which need to be given with regard to the businesses or the activities which are to be carried out as a professional, etc., etc. So I think institute should be in dialogue. That's the way I look at it, and I'm told that they are in dialogue with the FIU. And the day the notifications with regard to the formats will come, I think it will be applicable either from that particular date or maybe 15 days or a month later, whichever date will be given in that. So Rajesh, I think now we can take up some questions. Any questions? Yeah, I have a question. Yeah. Now, most of the small chartered accountant firms are doing accounting for some companies. They are filing their annual returns for companies. They are filing income tax returns. So whether this will also be covered under operation and management of a company? Definitely. ऑपरेशन तो आ जाएगा. अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन में तो आप आ रहे हो. और कंप्लायंसेस जो हम आरओसी के कंप्लायंसेस फाइल कर रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं. देखो ऐसा है, जो नहीं जो आप रिटर्न्स वगैरह फाइल कर रहे हो उसमें मेरे ख्याल में आप कहीं पे कवर नहीं हो रहे हो. पर अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो आप डे टू डे ऑपरेशन की बात है उसमें बेसिकली ऑफ द कंपनी. Because this is a job which is to be done by the management itself, so far as the preparation of accounts is concerned. And if in accounts there are suspicious transactions, what will you do? Should you be or should you not be reporting? I think that is $1 million question, and that is why I say institute must come out with the clarifications, very frankly. Yeah. See, otherwise reporting requirement even for auditors, if we look at, let's say, companies cases, 143(12) is a reasonably provision is there, and then we have been complying with the. Because as an auditor, you are not obliged to report under PMLA, but you are obliged to report under 143(12) of any fraudulent transaction. Absolutely, absolutely. और आरओसी कंप्लायंस में भी उसमें भी प्रोफेशनल को फॉर्म साइन करना होता है. जी, पर उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहाँ है? ट्रांजैक्शन नहीं है, बट इट इज पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब आप इसको वापस वैसे पढ़ो. इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस इन प्रोफेशन फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट, जो काम आप ही कर सकते हो वो काम वो इसमें नहीं कवर होंगे. जो आप उसके बिहाफ पर कर रहे हो, मतलब वो भी कर सकता है, वो इसमें कवर होंगे. प्रोवाइडेड इट्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. Provided it falls under the category of the financial transaction. एक मिनट मैं एक्सप्लेन कर, मतलब फॉर्म है, उस फॉर्म में लिखा है कि ये सर्टिफाई करना है चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंडेटरीली, तो वो तो उस फॉर्म को फाइल नहीं कर सकता. वो फॉर्म नहीं फाइल होगा, वो कवर नहीं होगा इसमें. पर अगर ऐसा फॉर्म है जिसमें आपके सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, वो करते हैं, तो वो फिर ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, ऑन बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट होगा. आईटीआर वाले जो फाइल करते हैं, आईटीआर में तो सिग्नेचर नहीं होते चार्टर्ड अकाउंटेंट के. हाँ, तो बस वो फिर कवर है, वो फिर इसमें आएगा. Sir, I think the word used is the financial assets if we are managing on behalf of the client. So I think that इसमें वर्ड है, वो 5 एक्टिविटीज जो है ना, वो इसमें लिखा है क्रिएशन, ऑपरेशन और मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज. हम इस पे अभी कर रहे हैं बात, एंड बाइंग एंड सेलिंग पे नहीं जा रहे अभी. क्रिएशन, ऑपरेशन और मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज, इस 3 टर्म को अगर हम, पहला तो क्रिएशन हो गया, वो तो खत्म हो गया. ऑपरेशन और मैनेजमेंट, ये टर्म है जो हमें एक बार इस पर बहुत filing of an ITR will not be a part of the management.
function. I personally feel it cannot be considered to be that you are managing a company. सर दैट इज राइट, बट अभी शर्मा जी भी बोल रहे थे कि जो बिहाफ जो कंपनी खुद कर सकती है, अगर वो काम करें तो आईटीआर तो वो खुद भी फाइल कर सकता है। टैक्स ऑडिट आप करते हैं, टैक्स ऑडिट तक आपका है। आई पर्सनली फील आरओसी के फॉर्म्स भी आज की डेट में वो खुद भी फाइल कर सकता है स्मॉल टैक्स ऑडिट तक तो आपको इम्यूनिटी है, टैक्स ऑडिट तक आपको इम्यूनिटी है। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। तो सर दैट मींस आरओसी फॉर्म्स जो है सर्टिफिकेशन, उसमें सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जहाँ पे सर्टिफिकेशन है वहां पे इम्यूनिटी है। तो जहाँ पर सर्टिफिकेशंस नहीं है वहां पर तो उसी के सिग्नेचर लगते हैं, आईटीआर में भी उसी के लगते हैं। तो उनके बिहाफ पर ही कर रहे हैं ना आप फिर? सर ऑन बिहाफ तो सारा कुछ क्लाइंट के पावर अटॉर्नी जब मिलती है, केस कराने जाते हैं तब भी उसी के बिहाफ पर जाते हैं। सर बन जाओ ना रिपोर्टिंग एंटिटी, फिर उसमें दिक्कत क्या है? सर एक क्वेश्चन और भी उठता है कि जैसे कि कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं कि क्लाइंट के बिहाफ पर जीएसटी और इनकम टैक्स पे करते हैं, क्लाइंट उनके अकाउंट में जीएसटी और इनकम टैक्स डाल देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं अमाउंट, और फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने अकाउंट से पे करते हैं। तो क्या ये एक्टिविटी कवर होगी इसमें? हाँ ये भी कवर ये तो कवर होगी, मुझे ये लगता है, क्योंकि इसके ऊपर इंस्टीट्यूट में भी डिस्कशन काफी हो गया एंड इंस्टीट्यूट विल बी डेफिनेटली डिस्कसिंग इट विद द एफआईयू। क्योंकि इसमें आप जो मर्जी कहें, आप उसके बिहाफ पे टैक्स पे कर रहे हैं, आप उसका बैंक ही मैनेज कर रहे हो ना टू एन एक्सटेंट बेसिकली। तो अगर वो आपके यहाँ पे फंड्स ट्रांसफर करता है और उसकी सोर्स आपको पता नहीं कि कहाँ से ट्रांसफर हुआ, और वो कैश ही ट्रांसफर करता है हमेशा 10 लाख 20 लाख 30 लाख, देयर इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। सर बहुत ये रिपोर्टिंग में आएगा सर ये? हाँ फिर आएगा। ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है जो फॉरेन की बहुत सी कंपनियां हैं, उनका पूरा का पूरा उनका बैंक भी वही मैनेज करते हैं, उनकी उसकी जिस तरह की भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे उनके थ्रू, उनकी रिसीट। तो बॉस वो सारे का सारा रिपोर्टिंग एंटिटी में। यस एब्सोल्युटली, यू कैन नॉट अवॉइड इट। एक सर क्वेश्चन और उठता है कि ऑडिट करने के बाद कुछ जीएसटी में बोगस परचेज आ जाती हैं, और जब स्टेचुरी ऑडिटर पीएमएलए से कोई लेना देना नहीं यार। अच्छा ठीक, उसका पीएमएलए से कोई लेना देना नहीं। वो फिर जीएसटी वाले कहाँ पे क्या करेंगे वो अलग बात है। ऑडिट के दौरान जो भी कुछ हो रहा है दैट हैज नथिंग टू डू विद पीएमएलए, लेट्स बी क्लियर। वो आप उसको 143(12) तक सीमित रखें। बस 2 क्वेश्चन आए हुए हैं सर अभी। तो व्हाट इज मॉनेटरी लिमिट फॉर रिपोर्टिंग? मैंने बताया ना आपको कुछ, उन्होंने 10 लाख बताया ना। 10 लाख 10 लाख और उसमें 5 लाख, वो 2 बता दिया। हाँ, और क्रॉस बॉर्डर में 5 लाख और बाकी सब जगह 10 लाख। और जहां पर फोर्ज्ड करेंसी है वहां पर कोई लिमिट नहीं है। जी सर, जी सर। व्हाट इज थर्ड वन? है जी, ये शर्मा जी आपने थर्ड कौन सा बताया? मैंने बताया एक तो 10 लाख है कैश ट्रांजैक्शन मोर देन 10 लाख, और सीरीज ऑफ कैश ट्रांजैक्शन अगर मंथली उसमें 10 लाख का एग्रीगेशन आ जाता है, मतलब एक ही क्लाइंट है वो, तो हम देखते ही इस तरह के काफी पकड़ लेते हैं हम लोग। और जो नॉट फॉर प्रॉफिट है उसमें 10 लाख से ऊपर का कोई भी ट्रांजैक्शन हो, उसमें कैश का ट्रांजैक्शन नहीं, 10 लाख से ऊपर कोई भी हो। फिर कैश ट्रांजैक्शन वेयर फोर्ज्ड करेंसी इज यूज्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट, और फिर क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर मोर देन 5 लाख। ये सर आपको ना रूल 3 में जाकर, रूल 3 ऑफ पीएमएलए मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड रूल्स 2005 में जाकर आप इसको और स्टडी कर सकते हैं, वहां आप डिटेल में इसको दिया हुआ, मैंने वहीं से। One of the friends is asking whether it's a good time to start. I think Ankush Munjal has asked it, whether it's a good time to start the practice in PML. Yes, why not? People are already doing it. Black money के अंदर PML के अंदर कर ही रहे लोग, and they are actually very well off. Yeah, absolutely. सर एक अभी आपने शर्मा जी ने बताया कि एडवोकेट भी इंक्लूड है, और उसमें मैंने कहा किसी ने एक्सप्रेस किया है। उन्होंने ये नहीं कहा। सर एक क्वेश्चन ये है कि क्या ये एक्सप्लेनेशन कोर्ट में स्टैंड करेगी? बॉस देखो एक बात बता दूं आपको, उसमें सुनने वाला भी एडवोकेट होगा, सुनाने वाला भी एडवोकेट होगा, और सुनवाने वाला भी एडवोकेट होगा। तो क्या कंसीक्वेंसेस हो सकते हैं वो आप देख लीजिए। अच्छा, वो स्टैंड नहीं करेगा। मैं 2 पॉइंट और इसमें 2 पॉइंट ऐड कर दूं। कंक्लूडेड है वो तो सर
हमने कर ही दिया है। सर इसमें ना दो हाँ, पॉइंट मैं और रेफर कर देता हूं, सेक्शन 13 और सेक्शन 14 PMLA। इसमें बिल्कुल बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। सेक्शन 14 कहता है कि रिपोर्टिंग एंटिटी पर कभी भी रिपोर्टिंग ना करने की वजह से कोई सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं स्टार्ट होंगी। और सेक्शन 13 में फाइन का इम्पोजिशन ऑफ फाइन का बात है, तो मैक्सिमम फाइन उसमें 10 लाख रुपए का है। और अगर आप FIU की साइट पर जाएं, वहां पर बहुत लार्ज नंबर ऑफ केसेस हैं वहां वेयर दे हैव, जो हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, बैंकिंग है, जो ऑलरेडी दे आर ऑलरेडी कवर्ड एज ए रिपोर्टिंग एंटिटी, दे आर इम्पोजिंग फाइन्स लाइक से फ्रॉम 50,000 टू 5 lakhs 10 lakhs, वो बहुत केसेस हैं। इसमें मतलब 14 सेक्शन 14 gives us a cover that there cannot be any civil or criminal proceeding against a reporting entity. नहीं, पर उसके बाद एक सेक्शन और भी है, मैं सेक्शन बोल रहा हूँ, जिसमें ये कहता है कि अगर आप इंटेंशनली रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करते हो, you will be considered to be abetting that. वो तो फिर ये भी है। इन्वॉल्वमेंट, अगर आप रिकॉर्ड मेंटेन भी नहीं करते और रिपोर्ट भी नहीं करते, in that case you will be considered to be abetting that crime. तो ये भी है उसमें। So सेक्शन में तो नहीं है, पर आई थिंक कहीं से इंटरप्रिटेशन निकल रही होगी। नहीं, ये राजकुमार अग्रवाल जी ने उस दिन बकायदा सेक्शन के साथ बोला, ये आपको बता रहा हूँ, और अनुपमा ने भी बोला, तो इसलिए मुझे वो याद है। इसलिए मैंने क्योंकि राजकुमार अग्रवाल जी को ये क्वेश्चन बोला था कि राजी क्या आप ये कहना चाहते हो कि भाई फिर रिस्क ले लेना, 10 लाख की पेनल्टी है ना, क्या होगा? तो बोले ना ये नहीं बोल रहा हूं मैंने कहा वो कहने लगे मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर आप ये नहीं करोगे, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करोगे, और फिर ये रिपोर्ट हो गया कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो ये फाइंडिंग में यह है कि आपने शायद डेलिबरेटली ना की हो इसको, ताकि ये रिपोर्ट ना करना पड़े, तो आप उसमें क्राइम में पार्ट हो जाओगे एंड यू विल बी कंसिडर्ड टू बी एन एक्यूज्ड। तो वो रिस्क तो लेना ही नहीं है। एक मनोज कुमार प्रजापति जी पूछ रहे हैं, व्हाट आर एडिशनल स्टेप टू परफॉर्म एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस कंपेयर्ड विद ड्यू डिलिजेंस? सेक्शन 12AA पढ़े सर, उसमें सारा डिटेल में लिखा हुआ। ओके, सेक्शन 12AA ये इसी का ही सेक्शन है, और ये इनफैक्ट सेक्शन 2019 में ही अभी ऐड हुआ है। हालांकि इसकी अभी डेट नोटिफाई नहीं हुई है, तो टेक्निकली आप इसको भी इग्नोर ही कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर FCRA रिसीव्ड बाय ए चैरिटेबल एंटिटी विल बी कवर्ड इन PMLA? आप उसके लिए आपको ना शेड्यूल्ड ऑफेंस देखना पड़ेगा। शेड्यूल्ड ऑफेंस में जब आप जाएंगे तो वहां पर FCRA नहीं है, क्योंकि PMLA का अल्टीमेटली तो शेड्यूल्ड ऑफेंस से ही कवर्ड है ना। मैं एक मिनट आपको देख के बताता हूँ, FCRA शायद उसमें, इफ यू आर रजिस्टर्ड अंडर FCRA और आप FCRA की कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं और कोई ऐसा बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है जहां पे आप सस्पिशियस हो, तो मेरे ख्याल में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखिए उसमें जो 29 एक्ट हैं उसमें तो FCRA नहीं है। नहीं है सर, उसमें नहीं है। होगा सर फेम, हाँ तो FCRA तो वैसे ही रिपोर्ट हो जाएगा ना गवर्नमेंट को। अगर कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आएगी ट्रस्ट को, तो वैसे भी रिपोर्ट होनी है। तो राजेश जी, let's say goodbye right now. If there are no further questions, thank you very much, and thanks to Anil ji for such an elaborate presentation. Basically, it was really very enjoyable. Thank you very much, and request राजेश जैन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, और वोट ऑफ थैंक्स भी दे दें। राजेश जैन जी, प्लीज ओवर टू यू सर। Sir, thank you very much Rajesh Agarwal ji for giving me the opportunity. दो हमारे स्पीकर्स हैं, दोनों ही स्टालवर्ड्स हैं, और मेरे ख्याल में मेरी तो बोलती बंद है उनके सामने। मैं क्या कहूँ, मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि जो भी कुछ डेलिब्रेशन हमारे स्पीकर्स ने रखा है वो एक वार्निंग है, या ये कहना चाहिए अवेकनिंग है हमारे लिए कि वी हैव टू मेंटेन एंड अपडेट आवर रिकॉर्ड्स। द समराइजेशन मे बी दैट whatever the KYC is required and prescribed and required to be maintained by us for the clients, we have to start with that, updating their
our records so far the KYC is concerned, because it may be required at any point of time in the future for further dissemination of the information to the government authorities. The moot questions here is whether all the chartered accountants firms as well as the individual partners are supposed to get themselves registered with the authorities, or to report individually or as a firm. So these are some finer things I think we have to just discuss and deliberate on these intricacies, and then work on it and provide some guidance to the members. The institute has to take the lead in it, and I think we should wait for the guidance note or the institute for us what we have to maintain, what we have to do, and what we have to follow, so that we are all in compliance with the provisions. The provisions are there. We have to comply. We have to abide by the law, and we have to prove that we are there to abide and follow the law. I think the apprehensions are there. We have to live with the राजेश जी, apprehensions. एक ही बात कहना चाहूंगा before you sum up. जी, We are living in a system today जी, जहाँ पे it looks like that enforcement agencies and one of the other regulators yes, will be questioning the auditors on related party transactions, particularly yes, why all related party transactions are on a nomination basis and not on tender basis. यहाँ तक की नौबत आ रही है कि वो ये कह रहे हैं कि आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को फ्रॉड एंगल से क्यों नहीं देख रहे, और व्हाई ऑल द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन शुड बी ऑन अ नॉमिनेशन बेसिस ओनली, कि भाई इसी को देना है और फिर उसका बेंचमार्क बना दो. वो कह रहे हैं आप टेंडरिंग क्यों नहीं करवाते उसके ऊपर. यहां तक सिस्टम आ रहा है. ये यहां तक की रेगुलेशन की मैं बात आपको बता सकता हूं. So we all auditors should become very careful with regard to these RPTs also. Through this media today I'm telling, because this question is going to arise sooner than later. Okay, why all the related party transactions should be based upon nomination and not based upon tenders? And then you should benchmark which is the lowest or which is the highest. Today, every related party transaction we try to justify. कि साहब इसने माल हमसे ज्यादा लेना था इसलिए हमने इसको डिस्काउंट दे दिया, या ये मेरी सबसे ज्यादा रिलायबल पार्टी थी. All those benchmarking is being done. But tomorrow, probably whenever the cases will go somewhere else, you will be questioned as auditors, and the directors will also be questioned, the audit committee chairman, etc. That why you didn't ask for the tendering in the case of the related party transaction? Why only the nomination basis? तो ये सिस्टम चल रहा है, ये मतलब कि एक्सपेक्टेड है इन द टाइम्स टू कम. अगर इतनी स्ट्रिंजेंसी आ रही है तो पीएमएलए में कितनी स्ट्रिंजेंसी होगी वो हमें समझ लेना चाहिए. तो जो आपने बात कही कि भाई रिकॉर्ड मेंटेनेंस जो है जितनी हम इम्प्रूव कर लें उतना अच्छा है, और मेंटेनेंस तो करनी ही पड़ेगी 5 साल. वो 5 साल का भी मैंने पीरियड आपको बता दिया, either from the date of the transaction or from the date of the closing of the relationship with the client, whichever is later, which will always be the second part. yes. अगर रिलेशनशिप नहीं है तो फिर मेरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी नहीं, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बाद ही रिलेशनशिप एंड होगी, तो हमेशा उससे ही 5 साल चलेंगे, तो हमेशा लेटर ही होने वाला. तो मेरे अपने हिसाब से the government is very keen that we as a system now improve as much as we can. बाकी तो ठीक है, वो चलने वाला कंसेप्ट मेरा ख्याल काफी हद तक खत्म हो रहा, और हो जाए तो और अच्छा. जी, जी. So with these words and the note of our worthy Chopra Sahab, I thanks once again to the speakers and all my colleagues on the panel and all the participants who have raised the question as well as who have devoted their time for today's session. Thank you very much. Thank you all. Namaskar. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you.